Okay, so today we are going to cover very important topic of German language. It is called conjugation of actions as verb. जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश के रिगार्डिंग डालूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियो soon as possible. Okay, so actions are like to read is lesen, to write is schreiben, to speak is sprechen, to listen is hören, to go is gehen, to come is kommen, to sing is singen, to dance is tanzen, to travel is reisen. Okay, so there is one thing common in all verbs. There is one thing common in all verbs, that is we have at the end one thing which is common, en. You guys can see en. So इसमें basically last में en जो है वो बिल्कुल common है सारे actions में. So ये जो list है, it is the list of actions. अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इन actions को as a verb use किया जाए. Okay, verb means its position will be specified. इसकी जो position है वो specify होगी. So specify position कैसे होगी अभी देखते हैं. सबसे पहले conjugation of actions, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा आपको. ओके, सो कमिंग बैक हियर. सो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं. वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और एनी नेम. So these are the 8 subjects which are common in every language. किसी भी लैंग्वेज में ये चीजें कॉमन है. And we know that how to tell them in German language. I is ich, you is du, and after that he, she, it means er, sie, es. He, she, it. Respectively, I have written it. After that, we is wir. After that, again, you is sie. It is formal you, and it is informal you. Okay. Now, wir, sie. After that, we have one more sie, which is called they in French. It is they. एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आप इन फ्यूचर अगर आप कहीं भी किसी नॉवल में, बुक में अगर जी लिखा हुआ देखोगे तो कैसे उसको पहचानना है. आज उस चीज पे बात होगी एंड इसी को बोलते हैं एक्शन एज वर्ब. सो ध्यान से पूरा इस लेक्चर को ध्यान से सुनना सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. सो वी डोंट वांट टू मिस ऑन एनी सिंगल थिंग. Everything will be explained. Just listen carefully. At last, we have ear. Okay, ear. ये एक new word है आपके लिए, ear, because in French, sorry, in German, we have this thing which is called you. It is kind of another type of you, and sometimes it is called they, and its sense will change according to the sentence. Okay, next,
how to conjugate, okay, conjugate action as verb, how to. So हमने अभी तक देखा है कि सभी जो मेरी वर्ब एक्शंस होंगे, जो भी एक्शंस हैं, उनके एंड में एक चीज कॉमन है, दैट इज en. It means all these are actions, okay, actions. Now ये जो en है, लास्ट वाला en है, it will be replaced with one word, two word और sometimes three words. एक, दो या तीन वर्ड्स के साथ ये चेंज हो जाएगी. मींस वो en को हम काट देंगे और एक वर्ड, 2 डिजिट्स वर्ड्स हो सकते हैं और 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं जो हम ऐड करेंगे. एंड व्हाट विल बी, वो जो वर्ड्स होंगे वो इस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होंगे. सो इसलिए इनको कॉन्जुगेशन बोला गया है, कॉन्जुगेशन ऑफ एक्शंस एज वर्ब. इफ इट इज इश, अगर इश यूज कर रहे हैं, विच मीन्स आई इन जर्मन, सो देन वी विल रिमूव द en, वी विल ऐड e. अगर do है, we will remove en को काट देंगे and we will add st. okay, next, अगर he, she, it और एक फोर्थ चीज है जो कि है नाम, name and pronounced as नामा in German. so इसमें हमने क्या करना है, we will add simple t. next, wir means we in German. we will remove en and add en. so in other language हम कह सकते हैं कि इसमें हम रेगुलर फॉर्म ही यूज कर सकते हैं en वाले, बिकॉज en को काट के en ही लिखा जा रहा है. so regular form can be used. after that formal u के साथ भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, en नहीं काटेंगे, in other words हम कह सकते हैं. next, en at the last, year. so year में क्या होता है, same as sie, es und Name, same as this, we add t like this. ओके, सो अब मैं आपको कॉन्जुगेशन लिख के बताऊंगा और क्यों हम इस चीज को यूज करते हैं, एग्जैक्टली क्या जरूरत पड़ गई इस कॉन्जुगेशन को यूज करने की जर्मन लैंग्वेज में, व्हाई वी आर यूजिंग इट. सो इट विल बी एक्सप्लेन्ड, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली, कंप्लीट सुननी है पूरी बात, देन ये समझ आएगा आपको. आफ्टर दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ वर्ड व्हिच इज वेरी सिंपल वर्ड, लेट्स से singen. okay, so you can see ena is at the end and now I will conjugate it. and जैसे कि मैंने बोला था en जो होगा वो कट जाएगा and will be replaced with 1, 2 or 3 words that depends upon our subject. okay, so subject के according मैं पहले इसकी conjugated forms लिखूंगा और उसके बाद हम sentences बनाएंगे इस पे, and that will be very easy to understand. let's start. Singer, singst, en कट गया और st ऐड हो गया. singt, singen, सिंपल, सेम फॉर्म हम यूज कर देंगे इसमें भी, नेक्स्ट में भी सेम. व्हाई, नो चेंजेस, en तो कट के en ही लग रहा है, और इधर वी कैन से कि en नहीं कटा और हमने रेगुलर फॉर्म ही यहां पर यूज कर लिया. At the last, we have singt. Now, let's make some sentences. Okay? अगर मैं कहना चाहता हूं I am singing, so I can say ich singe. Why? I को हम बोलते हैं ish. ओके, एंड जिंगन जो फॉर्म थी उसका en काट के मैंने e लगा दिया एंड इट बिकेम जिंगर. सो आप इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हो कि इसी एंडिंग के अंदर मेरी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. ओके,
ਸੋ ਸਤਵੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ you are singing, if I wanna say you are singing, what I will write here, tell me Harpreet. Du singst. Very nice. Okay, now Satwant, please tell me he is singing. Ear air synced टी लग जूगा जी। yes, T zinged. अच्छा, she is singing. Harpreet. She singing. We zinged. Zinged. Very nice. Okay, so now अब आप फॉर्मल में बनाना है इसे, लाइक यू आर सिंगिंग। फॉर्मल में बनाओ इसे सतवंत। जी Zingen. रेगुलर फॉर्म ना, ई एन। यस। सो अब पहले आप कंफ्यूज थे भी सर जी भी सेम लिखा गया है, जी भी सेम लिखा गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब शी है या यू है। ये हमारी वर्ब बताएगी हमें कि इसका मतलब शी है या हाँ जी। क्लियर हुई कुछ बात? हाँ जी सर। सतवंत क्लियर होगी ना? क्योंकि उधर इधर लग गया, इधर आर लग गया, इधर ज्यादा जाने उधर सिंगल हैगा। देखो इथे तो सानू पता लग जाता है, राइट? हाँ जी। इथे की चीज हुई, इथे मेरी वर्ब दसूगी भी ਇਹ she वाली है या ਇਹ you वाली है। ठीक है समझ आ गई ना गल? ठीक है जी। हाँ जी। हले भी एक चीज दी कंफ्यूजन बाकी है। en वाली दी सर। दे लगा है, दे। Yes, when they will be written, they are singing, the sentence is going to be the same. Sie singen. So this particular sentence is situational and conversational. जब हम किसी से बात कर रहे होंगे तब हमें ये कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इस सेंटेंस का मतलब यू आर सिंगिंग है या दे आर सिंगिंग है। एंड यस, जब हम आगे जाके जब नॉवेल्स वगैरह या बुक रीड करेंगे ना, तब हम पता चलेगा भी सेंटेंसेस जब बहुत सारे दो तीन लेट्स से 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां पे जाके कहीं अगर जी लिखा आ गया और उसके साथ वर्ब जैसे जिंगन लिखी आ गई या, तो वहां पर हम ये देखेंगे ये एस छोटा है या बड़ा। अगर छोटा होगा तो उसका मतलब दे बन जाएगा। अगर ये एस बड़ा हुआ तब हम पीछे वाले सेंटेंसेस रीड करेंगे कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या चल रही है। पीछे वाले सेंटेंसेस से हमें पता चलेगा भी वो सिंगुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वी विल कम टू नो कि ये जी दे है या यू। बात ठीक है? Okay, so please go ahead and write it. I'm on hold for you. Everyone, write it. Okay, let's make some sentences using koken. Koken is to cook. Okay, so I am cooking is going to be ish cook. Yeah. Okay.
हाँ जी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी एक और सेंस भी निकलती है, जैसे कि आई कुक, इसकी दोनों सेंसेस हो सकती हैं, आई एम कुकिंग एंड आई कुक। ओके, आई कुक का मतलब मैं खाना बनाता हूं, हाँ, या आई एम हाँ कुकिंग जी, मैं खाना बना रहा हूं। सो रहा it हूँ। has both senses in German language. As in German language there is no ing thing, okay, in simple form. So that's why it could mean both, okay, ਇਹਦੇ दोनों मीनिंग हो सकते हैं guys. So don't confuse it with any two sentences भी सर पहला था ich bin kochen sie and hun ਐਵੇਂ हो गया कैਵੇਂ हो गया. So exactly why I am teaching you this, in German language we have several ways to form a sentence. हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, so first is making sentences using helping verbs. एंड हेल्पिंग वर्ब्स वाला तो मैंने करवा दिया ना, इज एम वाला, इज एम आर वाला, राइट. हाँ जी, हाँ, तो ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड टाइप है कि आप किसी सेंटेंस को कैसे कह सकते हो किसी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में स्पेशली. इट इज यूजिंग एक्शन एज वर्ब. अब आप कहोगे कि सर एक्शन एज वर्ब क्यों बोल रहे हो? आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, प्लीज गिव इट अ लुक. Have a look at here. I, ich, am, ben, singing is singen. Okay. In German language, we say Z instead of S. Okay. So here, ये हमारे पास एक्शन था और इसको हमने वैसे ही यूज किया था आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं हो सकती. सेम वे जब मैंने इसको एक्शन एज ए वर्ब यूज किया, मैंने एक्शन में से ई एन काटा और सिर्फ ई ऐड कर दिया, और ये ई ऐड होने का मतलब ये हो गया कि मेरी वर्ब जो है ऑटोमेटिकली लगी. दैट्स व्हाई हम इस कंसेप्ट को कह रहे हैं कॉन्जुगेशन ऑफ एक्शन एज वर्ब. ठीक है जी. पर हाँ, हाँ जी, ये सभी ऐसे ही कॉन्जुगेट हो सकती हैं, पर हाँ, नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इज इसमें कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में दो तरह की वर्ब्स होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो कौन सी रेगुलर है कौन सी इरेगुलर है इसकी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा वेरी सून. एंड ऑल्सो इस लैंग्वेज में रेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं regelmäßig Verben एंड इरेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं unregelmäßig Verben.